Hello, everyone. This is the 18th episode of Dallin's podcast, and here we have my friend, my brother, Mr. Yashat. Yashat is the owner of Mysteria Cafe, and esports में he's doing a lot. And I think he's one of the few people मुझे लगता है यहाँ पे this side of country में जो esports के लिए इतना कर रहे हैं. And it's my honor to have him. Thank you, sir. And we've been planning this for a very long time. And thank you, Yashat. Thank you, sir. The pleasure is all mine to be finally here, and thank you for having me. It means a Thank lot. you so much, यार. Thank you, sir. ठीक है, चलो starting में हाँ जी सर. tell me about Mysteria Cafe. So What is Mysteria Cafe? ठीक है सर. तो जैसे क्या है कि Mysteria is a combination of everything related to games. Not just games, not just esports, but उसके साथ खाना, उसके साथ मस्ती, उसके साथ friends और all together एक नया vibe जो कि North lack करता था. तो वाई वाराणसी एंड वाई यूपी बिकॉज सर ये हमारा होम टाइम है एंड वाराणसी में बिकॉज इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे गेमर्स हैं, तो व्हाट नॉट, व्हाई नॉट. तो इसके लिए मिस्टीरिया इज फ्रॉम वाराणसी एंड इट्स अ गेमिंग कैफे. So how did you get this idea Mysteria Cafe का? So sir, before Mysteria, I used to be a software engineer and मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक था सर. मतलब मैं बहुत जगह घूमता था, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता था. तो वहाँ पे देखता था कि जैसे सर वहाँ पे कैफेज होते थे, वो they were not just food. वहाँ पे मतलब you can have food and you can paint things, you can do some craft, and this is not the case in just India. US, Europe and China, Korea में this is very very common. तो इंडिया में बस गोवा में और बैंगलोर में ऐसी कुछ चीज़ थी. इसके लिए सर कि we decided to do something like that. And सर आज के I'm being very very practical and honest, esports is the next big thing सर. मतलब 2025 में Ernst and Young की एक रिपोर्ट आई है. 2025 में बस इंडिया में $500 million की इंडस्ट्री है esports, एंड बस 10 से 12 लोग हैं जो अभी इंडस्ट्री में बहुत फेमस हैं, एंड इट्स completely untapped and we have to jump into it the right way. That's why Mysteria happened. Food and games दोनों ट्रेंडिंग चीजें साथ में. अच्छा, ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहोगे? People who are, say for example, जिस पोजीशन में आप थे बहुत टाइम पहले and you thought you know what I want to do something, ठीक है, मुझे अपने this is my passion, I want to follow my passion, मुझे अपना ऐसे करके अपना गेमिंग का और ये सब करना है. For example, कोई अगर आपके शूज में हो and someone wants to open a restaurant, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? क्या एडवाइस आप उनको देना चाहेंगे? सर ऑनेस्ट एडवाइस ये है कि जैसे इंस्टाग्राम पर या लिंक्डइन पर सर बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है एंटरप्रेन्योर कल्चर को कि do it. Mr. Manik Bhasin was here on this podcast. He said the same thing. Excellent podcast. I've heard it. So I watch all your podcast videos. They are very nice. And ये वाला जरूर देखना. ये वाला जरूर देखूंगा सर. But इससे क्या होता है कि it's also about just do it, but at the same time it's about कि you have to plan things. मतलब you have to know where you are going. You have to know how you to go there, and before sailing. You have to keep all the supplies. You have to be ready. ये एक दिन से नहीं होता या एक साल से भी नहीं होता कि आप सोच रहे हो आपको करना है, आपने इन्वेस्टर्स जुगाड़े, आपने अपनी सेविंग्स लगाए और हो गया ना. दिस इज नॉट द केस एट ऑल. ये नहीं होना चाहिए सर. यू नीड टू नो कि व्हाट इज देयर इन द इंडस्ट्री, व्हाट यू आर जंपिंग इनटू. जैसे सर आप भी बोलते हो कि जब तक मुझे फुल आइडिया नहीं होता मैं नहीं करता कोई चीज. तो वही चीज होता है सर. अब क्या होता है कि स्टार्टिंग में चीजें पढ़ना या पता लगाना इज अ वेरी वेरी टीडियस टास्क. बहुत मेहनत का काम होता है एंड लोग करते नहीं. अगर उनको पैसा दिख जाता है हाँ क्या ही होगा. पीपल आर स्मार्ट. आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट स्मार्ट, बट अगर कोई चीजें करते वक्त सीखता है ना तो ज्यादा एफर्ट्स वेस्ट होते हैं सर. तो माय सजेशन इज टू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, रीड अबाउट इट, save some time. ऐसा कुछ नहीं होता कि you have to start early, but you have to start perfect. It's better late than in a bad way. And बस just one last thing I'd like to say sir कि Udemy पे भी कई सारे कोर्सेज हैं, YouTube पे भी कई सारे कोर्सेज हैं. मैं Udemy को ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि वहाँ पे जो कोई कोर्स बना रहा है ना वो एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में बनाता है. एंड Udemy पे ऐसे कोर्सेज है कि हाउ टू इवन स्टार्ट अ पॉडकास्ट. एंड आपने सर बताया भी था कि तो these small things will help you go a long way. So that is what I want to say कि do it, but do it with proper planning. ऐसे बिना बात प्लान्स नहीं लेना चाहिए. चाहिए. Because there are a lot of people, I think, what I've seen
कि एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, उनका मैं क्या ही नाम लूंगा यहाँ पे, जो विदाउट थिंकिंग दे जस्ट टेक द प्लंज। ठीक है, देखते हैं जोमेटो स्विगी है यार, चल तो जाएगा ही, इतने सब रेस्टोरेंट चल रहे हैं तो चलो लेट्स टेक द प्लंज। तो आई थिंक दैट इज वेरी डेंजरस। It is, sir. It is. And sir, very few people know this, but restaurant industry, fooding industry, just as Manik bhai also said it, कि it's a very fatal industry, sir. यहाँ पे mortality rate बहुत ज़्यादा है। मतलब एक बहुत सिंपल रूल होता है सर, जो हर रेस्टोरेंट को पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड 30-30-30-10 रूल। अच्छा, व्हाट इज दैट? सो 30-30-30 मीन्स कि आपका जितना भी रेवेन्यू है, सेव द टैक्सेस, उसका 30% से ज्यादा आपका कॉस्ट ऑफ फूड नहीं जाना चाहिए। उसके 30% से ज्यादा आपका ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं जाना चाहिए। ओवरहेड एक्सपेंसेस इंक्लूड्स रेंट, इंटरेस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एवरीथिंग, एंड उसके 30% से ज्यादा आपका सैलरी, स्टाफ का सैलरी कॉस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर आप ये कंट्रोल कर ले रहे हो तब आप 10% जो बचेगा वो आप घर लेके जा पाओगे, दैट विल बी द प्रॉफिट। एंड पीपल डोंट नो दिस। मतलब वो क्या होता है कि they want to give the best to the customers, to the people, and that's a very good thing. But वो बेस्ट देने में सर सैलरी कॉस्ट क्या होता है कि अब 30% से ज्यादा चला जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स भी 30% से ज्यादा चला जाता है, एंड ओवरहेड भी 30% से। तो एट द एंड ऑफ द डे यू कीप अस जस्ट पुटिंग इन मनी और वो पूरा फिनिश हो जाता है। तो 60% से ज्यादा रेस्टोरेंट्स विद इन 8 months वो क्लोज हो जाते हैं, 60% से ज्यादा। एंड सेम विद डिलीवरी किचन्स। एग्जैक्टली, डिलीवरी किचन्स में सर थोड़ा कैपिटल कम होता है, बट डिलीवरी किचन्स को ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है अपना ब्रांड बनाने में एज कम्पेयर टू अ वॉक-इन किचन। बट all in all, it's a very satisfying industry for the owners, but a very cutthroat industry as well. बहुत ज़्यादा cutthroat है। मतलब you need to be on the top of your game all the time, तभी आप कर पाओगे। अच्छा, what do you think about Varanassi's restaurant industry? It's sir, Varanasi because इतना पुराना है, it's the second oldest city in the world after Damascus, जो कि मतलब Damascus सीरिया में अभी जो हालत है उसकी वो तो हम जान ही रहे हैं। बट वाराणसी का सर जो बनारसी भाषा में बोलते हैं ना, इसका अंदाज ही अलग है सर। यहाँ के मतलब फ्लेवर्स इतने रिच हैं ऑलरेडी, जैसे सर यहाँ की आलू टिक्की चाट या यहाँ पे जो बाटी चोखा है, इतना बढ़िया अमेलगमेशन है चीज़ों का। तो बनारस की अगर आप कोई एक स्पेशलिटी बोलें रेस्टोरेंट में या किसी खाने में, तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके लिए वाराणसी की जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है वो भी बहुत चैलेंजिंग है कि सबके टेस्ट को केटर करना थोड़ा मुश्किल है। बट सर यहाँ पे सब कोई टेस्ट की कदर करता है, सर्विस की कदर करता है, एंड पीपल लव टू बी ट्रीटेड, तो उनको सर्व करके बहुत अच्छा लगता है। कट शॉर्ट सर वन वर्ड में ये बोलेंगे कि सिर्फ यहाँ पे बनारस में लोगों को अपना कंफर्ट फूड चाहिए, उनको नान, पनीर, बटर मसाला चाहिए, और at the same time Varanasi is open to trying out new things. This is very surprising, sir. There are such excellent bakeries, and even at Mysteria people are open to trying so new things. This is sir हमारा hot selling item Mysteria में सर sangria, virgin sangria, and it's a drink which originated in the south and in abroad, and people have accepted it. That shows सर कि वाराणसी का दिल बहुत बड़ा है, यहाँ पे लोग सब ट्राई करना चाहते हैं, बट कंफर्ट फूड इज कंफर्ट फूड। तो अरे मैं ये नान और पनीर वाली एक स्टोरी बताऊं। सो माय कजन ब्रदर ऋषभ, तो हम लोग बहुत इट्स बिन अ व्हाइल इस बात को, हम लोग पार्टी में थे, ठीक है, एंड देन द होस्ट थिंग वंडरफुल पीपल, सो दे ऑर्गेनाइज पूरा कॉन्टिनेंटल और सबका सब, दे फ्लू इन शेफ्स फ्रॉम पता नहीं कहाँ बाहर से शेफ्स आए थे, सब आए थे। इट वाज अ वेरी नाइस गॉर्मे पार्टी, पूरा कॉन्टिनेंटल, मतलब व्हाटएवर वर्ल्ड क्विजीन आप इमेजिन कर सकते हो वहाँ पे थी। सो मी एंड माई ब्रदर वी थॉट किया चलो अब तो वो खाते हैं यहाँ पे बैठ के। जब बैठे एंड देन उसने इधर उधर खाया सब चीजें, तो कहता है वो सब तो ठीक है, नान और रोटी कहाँ है? पेट कैसे भरेगा? एग्जैक्टली सर, पेट कैसे भरेगा? ऐसे मिस्टीरिया में भी ऐसे होता है कि भैया लोग आते हैं, ये सब तो सही है भाई, बर्गर पिज्जा बहुत टेस्टी है, हमने गेम भी खेल लिया, लेकिन बताइए खाना खाने के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है, वो लेके आइए, हमको रोटी नान चाहिए। It was like that. Yeah. So we spoke about food and
Mysteria में how you're promoting food and मतलब मैं भी even I'm a huge customer Mysteria का I love Mysteria Thank का you, sir. food Thank you. ठीक Thank है? you for patronizing. And अभी one of my friends also came तो हम लोग आए थे me my wife तो it was amazing ठीक है पर मैं Mysteria के दूसरे साइड के बारे में बात करना चाहूँगा e-sports के बारे में हाँ जी, sir. ठीक है tell me something what is the future of e-sports in India So just as I said, esports is not just the next big thing, sir. It's something which is very different and very important. ऐसे सर कि everyone is gifted in one way or the other. अब I used to be gifted in academics मेरे school time में sir. So I used to study and then I got into NIT and then I was a software engineer. But sir, even when in NIT and even when in school, we all used to play games. जैसे सर उस समय एक IGI आता था, उस समय Counter Strike होता था. So all of us used to play games. And सर जो पर्सन जो academically gifted नहीं था और जैसे जो स्पोर्ट्स में अच्छा था या जो थोड़ा क्रिएटिव साइड में अच्छा था, we even saw him performing very well in games and we also performed very well in games. तो मुझे क्लिक किया कि why not you know make esports a profession which people are doing. I'm not doing something very noble या एकदम novel concept में लेके आ रहा हूँ. ये हो रहा है सर, but अब ये इतना ज़्यादा rapidly grow करने वाला है और लोग हैं नहीं. इसके लिए मैं बोला कि now is the time you know to delve into esports. And esports is not just a tournaments. It's not just you know winning competitions. It's about earning from the online sports industry. अब जैसे सर क्या होता है कि you know YouTube is becoming so big these days and there are many people playing games. अच्छा we missed one very important part. I'll come back to it कि सर why esports. उसके पहले explain हम लोग के viewers को there are a lot of people watching this जिनको नहीं idea what is esports. हाँ जी. So tell me what is esports. Sir, esports is basically any sport skill based. On electronic devices, Okay. be it phone, be it tablet, be it PCs, laptops, VRs, but सर वो skill based होना चाहिए, वो luck based नहीं होना चाहिए, फिर वो online gaming हो जाता है, वो e-sports नहीं रहता. Online gaming is under 28% GST slab, वो बहुत controversial topic रहता है. Exactly, but e-sports is fully legal. In fact, Indian government ने अभी e-sports को realize भी कर लिया है, and वो जो e-sports लोग खेलते हैं ना, Indian government has finally accepted them as athletes. तो इनको वो athlete मानते हैं एंड स्किल बेस्ड है. कोई भी गेम खेल रहा है अगर फोन पर और अगर वो किसी टूर्नामेंट या किसी कंपटीशन में पार्ट ले रहा है तो ही इज एन ई स्पोर्ट्स प्लेयर. अच्छा कुछ एग्जांपल्स ई स्पोर्ट गेम्स जैसे सर अभी BGMI इज द ट्रेंडिंग game there is. Call of Duty mobile. BGMI is so famous. Free Fire mobile is so famous because जिसके पास मोबाइल है वो ये गेम्स खेल सकता है. एंड सर मैं आपको बताता हूँ चाहे किसी को कुछ मिले या ना मिले पीपल प्ले गेम्स. आई एम प्रीटी श्योर आप भी गेम खेलते होंगे, आई एम प्रीटी श्योर भैया भी गेम खेलते होंगे, आई एम प्रीटी श्योर मैं भी गेम खेलता हूँ. सर हम लोग गेम क्यों खेलते हैं? बिकॉज हमें जॉय मिलता है. एंड बस एक फीलिंग चाहिए कि स्पोर्ट्स प्लेयर को कि उसको भी ये फीलिंग चाहिए कि आई वांट टू इम्प्रूव, कि मैं यहाँ पे आई परफॉर्म्ड यू नो बैड, आई वांट टू डेवलप सम स्किल्स. जैसे सर थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में जा रहा हूँ बट आई एम प्रीटी श्योर जो गेमिंग इंडस्ट्री के लोग होंगे वो इससे बहुत कनेक्ट करेंगे कि जैसे जब भी हम लोग स्टार्टिंग में कोई कार वाला गेम खेलते हैं या कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं बस 2 thumbs यूज करते हैं. धीमे धीमे इफ यू वांट टू इंप्रूव तो पीपल स्टार्टेड यूजिंग 3 fingers. उसको 3 seen this iPad और उसको यूज करते हैं. फिर पीपल स्टार्टेड यूजिंग 4 finger ऐसे करके. तो दिस इज द फीलिंग ऑफ यू नो लर्निंग न्यू स्किल. अगर आप नई स्किल सीखते हो तो आप ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्म करोगे. तो these are the some examples of phone based esports tournament. और इंडिया में जो नेक्स्ट पीसी पर जो नेक्स्ट बिग थिंग आ रहा है सर इट्स Valorant. Valorant. People are loving Valorant and they are you know उनका एम ये होता है कि वो अपनी बेटर से बेटर रैंक करें, बेटर से बेटर टूर्नामेंट्स जीतें. एंड एट द सेम टाइम सर अब लोगों को इतना ज्यादा कंटेंट क्रिएशन के बारे में पता चल गया ना कि everyone wants to be a streamer, everyone wants to be a content creator, Everyone wants to be a content but sir they don't know how. And sir this is where you know you're helping them. मतलब this podcast in general ये कंटेंट क्रिएटर या तो फैशन ब्लॉगर. exactly. And sir they are actually very well paying things. ये काफी पैसा दे रहे हैं बट सर अगर लोगों को पता चल जाए ना कि
कैसे करना है, दैट इज वेयर वी कम इन। जैसे सर हम उनको गेम खेलने का प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, we will even teach them how to stream, we'll even give them devices, they are very well, they're more than welcome to come to Mysteria to play PCs just at rupees 100 rupees per hour or 120 rupees per hour। जो डिवाइसेस सर मार्केट में 1.5 लाख रुपए की है वो 100 रुपीज पर आवर में कर सकता है, एंड इट जस्ट टेक 20 hours to learn everything। That is what we want to do। We're just in the process of building a community। हम एक community बना रहे हैं सर, community अच्छी बन भी रही है, बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं। Once that is done, we'll be एकदम full fledged। अच्छा, ई स्पोर्ट्स में अगर करियर बनाना हो तो क्या करना होगा सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर ई स्पोर्ट्स को ना, गेम्स को अभी भी, जब फिजिकल स्पोर्ट्स को अभी भी टैबू कंसिडर करते हैं लोग कि पढ़ेगा नहीं खेलेगा तो बर्बाद हो जाएगा, तो वैसा ही ई स्पोर्ट्स के साथ और ज्यादा है, क्योंकि स्पोर्ट्स तो अभी फिर भी 100 साल 50 साल हो गए स्पोर्ट्स को, ई स्पोर्ट्स तो सर अभी 5 साल भी नहीं हुए। तो पीपल सी दिस एज अ टैबू, बट इट इज नॉट। जैसे सर कोई भी चीज अगर आप कंट्रोल में नहीं करो तो वो एक टैबू बन जाती है। तो ई स्पोर्ट्स एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बट मैं बताऊंगा, अभी बताता हूँ सर कि क्या करना है इसमें करियर बनाने के लिए। अभी जिसको भी ई स्पोर्ट्स को करियर बनाना है, दे नीड टू गो इनटू कंटेंट क्रिएशन, बिकॉज जो टूर्नामेंट्स होते हैं अभी इंडिया में, दे आर वेरी वेरी फ्यू, लोकल लेवल पे तो होते ही नहीं है। एग्जैक्टली। एंड तो जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग होगा वो कंटेंट क्रिएशन ही, और उसमें भी बहुत पैसा, ऐसा नहीं बहुत पैसा नहीं। इफ यू हैव 10,000 फॉलोअर्स, इफ यू आर पुटिंग इन 6 videos a month, अच्छी वीडियोस, क्यूरेटेड वीडियो, you can easily earn 20 to 25,000। So that is amazing। That is amazing। That is next level। Add revenue sir। Exactly। सर मैं YouTube बता रहा हूँ, जो कि YouTube इंडिया में जो कि सबसे कम पेइंग है। सर आपको पता है YouTube को ऑस्ट्रेलिया में पर 1000 एड्स आपको YouTube से अराउंड $5 मिलते हैं, यूएस में $7 मिलते हैं, इवन इनफैक्ट पाकिस्तान में सर $2.5 मिलते हैं पर 1000 एड व्यूज। इंडिया में से ये $0.7 है, दोनों है भी तो इतने ज्यादा। एंड सर उसके बाद भी लोग 25,000 कमा ले रहे हैं, एंड व्हाइल डूइंग समथिंग व्हिच दे लव। हाँ बट सर क्वांटिटी में हो जाता है ना। एग्जैक्टली। तो सर अभी अगर आपको ई स्पोर्ट्स में करियर बनाना है तो you need to go into content creation, and content creation is very nice। Abhi it's boom, it will be on boom for the next 3-4 years, 10 years I think at least। So जब तक AI वाला चीज मुझे यार AI का पता है क्या, what I have seen, for example Mission Impossible movies देख लो, ठीक है, Mission Impossible movies का main thing, the main selling point nowadays is कि इसमें CGI नहीं है। People are tired of this computer generated things and AI also, ठीक है। अब AI का क्या, right now it's a novelty, ठीक है, लोगों को मजा आ रहा है म्यूजिक सुनने में AI वाला, ठीक है, किसी की भी आवाज में गाने सुन रहे हैं, फेक वीडियोस पूरे डीप फेक बन जा रहे सब। नाउ मुझे जो लगता है, that is my own opinion, आने वाले टाइम में people are gonna get tired of this, उनको चाहिए असली ह्यूमन। ये तो है सर। अब मुझे मिशन इम्पॉसिबल क्यों पसंद है, क्योंकि टॉम क्रूज इज द वन एक्चुअली जंपिंग। एग्जैक्टली। वो है जो ट्रेन से लटक रहा है, वो है जो पूरा प्लेन से कूद रहा है, वो हेलीकॉप्टर क्या कहते हैं बाइक लेके कूद जा रहा है। सो मैं इसीलिए देखने आता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टॉप गन क्यों हम लोग को पसंद आई थी, क्योंकि टॉम क्रूज इज द वन जो पूरा प्लेन में है। एग्जैक्टली सर, ठीक है। एक्चुअली रियल एक्टर्स वर इन द कॉकपिट फ्लाइंग। अब यही चीज कोई CGI वाली हो जाए, फॉर एग्जाम्पल वो कौन सी बॉलीवुड मूवी आई थी वाली, रामायण वाली, अरे नहीं, कंगना रनौत वाली कौन सी मूवी थी, बहुत ही बेकार मूवी थी। माय मदर वाज वाचिंग दिस, उसमें पैराशूट से गिर रही है, साफ पता चल रहा है कि बस वैसे खड़ी हुई है, पैराशूट को दिखा रहे पीछे। So after a while पता people don't want to see CGI, they want to see the real thing। तो सेम देखना इसी चीज में भी होगा, AI वाले में भी। Sir, but what I believe, no, because AI is so easy these days, no, मतलब इतना सिंपल हो गया AI कि आप ना बस उसको क्लिप्स दे दो, 10 क्लिप्स गेम खेलते हुए अपने रिकॉर्ड करने की, वो 10 क्लिप्स की ऑटोमेटिकली हाइलाइट्स निकाल लेगा, ऑटोमेटिकली लोज निकाल लेगा, ऑटोमेटिकली आपका क्लिप कर देगा स्टार प्लेस, एंड मतलब वो आपका काम बहुत आसान कर देगा। हम लोग पॉडकास्ट की रील्स के लिए भी तो AI यूज करते हैं। ग्रेट। हाँ सी, एडिटिंग में आई कैन अंडरस्टैंड, वो तो चलो दैट इज वन एडेड एडवांटेज। एग्जैक्टली। जो काम 2-3 लोग करते हैं उसको घंटे लगा करते, दैट वो कितना 5 मिनट्स होता है AI वाला, 5 मिनट्स। दैट इज ऑसम। तो सर अभी क्या है ना कि अभी AI इज मतलब एक्सेस इज टू वेरी फ्यू पीपल, तो मतलब क्वालिटी है, बट सर जब कहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा ना तो देयर विल कम अ टाइम जब AI खुद पोस्ट करेगा हर चीज, बॉट्स हर चीज एकदम स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। 9gag पे आई यूज्ड टू लव ब्राउजिंग 9gag, ठीक है। अब इतने सारे बॉट्स आ गए, रेडिट पे इतने बॉट्स आ गए हर जगह एक्चुअली।
हर जगह अब यही होने है, बॉट्स ने पोस्ट किया Exactly. और it is going to be bad. But what do you think about AI? For me, मतलब it's a good thing, sir. It's a very very good thing. It saves your time. You can actually focus on doing something creative which no computer can ever do. ये काम आप ही कर सकते हैं. And sir समझ में आ जाता है कि क्या कंटेंट AI ने जनरेट किया, क्या कंटेंट आपने जनरेट किया. तो हमेशा स्किल की वाली होगी सर. आज भी रोल्स रॉयस का हैंडमेड चीज is considered much better than all these automated things are जो भी हुआ. उसका real content is a class apart. So, but it is beneficial if you use it. की बात ही कुछ और है. Exactly. I'll tell you about watches. ठीक है, मुझे watches का बहुत शौक है. So this is a brand called Grand Seiko. Seiko का जो है उनका luxury version है Grand Seiko. तो what they do इसकी जितनी चीजें हैं एक watch में, it is all handmade by a person sitting in Japan में किसी फैक्ट्री में. एक आदमी बैठ के पूरा उसको बना रहा है. Wow. watch को, and he's polishing that watch and everything is done by that one person. Wow. Grand Seiko. Wow. तो human touch की बात ही कुछ और है. Actually. Nice. These are the things which sets a brand apart, sir. And that is the case with esports as well, sir. कि जैसे सर क्या होता है ना कि अभी लोग क्या समझते हैं कि it's very मतलब skill development in India is getting a focus now. But sir अभी भी ना people are they specialize only in one aspect of one thing which they have to do. जैसे सर अगर कोई गेमर है ना सर तो वो बस गेम खेलने में अपना पूरा अभी रिसोर्सेज दे रहा है. बट सर बहुत कम लोग ही हैं जो गेम भी खेलते हैं, जो अपना क्लिप्स भी बनाते हैं, जो उसको खुद से एडिट भी करते हैं और उसको खुद से पोस्ट भी करते हैं. तो इससे क्या होता है ना सर कि अगर कोई बस गेम खेल रहा है तो अपने दोस्त को बोलेगा यार, बिकॉज सर अभी पैसे नहीं है लोगों के पास, अभी बच्चे ही ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में एंड पैसे नहीं है, एंड इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग. अपने दोस्त को बोलेगा यार मेरी एक क्लिप है बस इसको एडिट कर दे भाई, एडिट कर दे तो 2 समोसा खिलाऊंगा. अब द पर्सन हु इज आल्सो एन एडिटर उसके भी टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, तो वो अपने दोस्त के लिए कर तो देता है सर, बट जो चीज 2 दिन में 3 दिन में आनी चाहिए that takes around 7 or 10 days. वहीं पे consistency break होती है, वहीं पे आपका YouTube page dead होने लगता है. तो consistent but with quality content. तो what you need to do is कि आप बस 2 महीने ना आप गेम खेलो, अपनी स्किल इंप्रूव करो, लेकिन आप 2 महीने आफ्टर इफेक्ट्स फोटोशॉप भी सीखो, एंड वो सीख के आप YouTube पे स्टडी करो कि आपको स्ट्रीमलैब्स OBS की क्या सेटिंग्स रखनी है कि आपका बेस्ट क्लिप रिकॉर्ड हो, फिर उसको कैसे एडिट करके किस चीज पे डालना है कि आपको बेस्ट मतलब व्यूज मिले, एंड उसको कैसे मार्केट करना है, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इज ट्रेंडिंग लाइक एनीथिंग. कैसे आपको उसको मार्केट करना है. So that is what we want to tell people in the longer run. मतलब a complete gaming package हमें उनको देना है. And सर अभी content creation से लोग earn कर सकते हैं. एक बार वो content creator famous हो गए तो they can earn using partnerships and collaborations with brands. And फिर if they keep on improving no, जैसे सर जो एकदम selected individuals होते हैं, जो एकदम best gamers होते हैं, वो अभी टूर्नामेंट से भी बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं. they can earn around in millions. 15 से 20 लाख रुपए बस टूर्नामेंट से जीत सकते हैं जो एकदम टॉप गेमर्स हैं. बट सर अभी धीमे धीमे जैसे स्टेट पे से जैसे रणजी ट्रॉफी होता है, जैसे सिटी में टूर्नामेंट्स होते हैं, धीमे धीमे ई स्पोर्ट्स इज गोइंग टू बी एट सच अ लेवल कि स्टेट के भी जो टूर्नामेंट्स होंगे, जो सिटी के भी टूर्नामेंट है, उसमें भी लोग अच्छा खासा अर्न कर पाएंगे. एंड सर विथ योर परमिशन कैन आई डिस्क्लोज समथिंग? अरे यार, फॉर ऑल द व्यूअर्स आउट देयर आई जस्ट वांट टू टेल यू कि माहिर सर इज कोलैबोरेटिंग विद मिस्टीरिया टू ब्रिंग अ टूर्नामेंट फॉर ऑल ऑफ यू. दैट इज नेक्स्ट लेवल जो हम लोग करने वाले हैं. एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर वाराणसी, इट्स नॉट जस्ट फॉर यूपी. पीपल फ्रॉम एवरीवेयर can come in and play the games, online games. अगर 3 हफ्ते की लीग होने वाली है with amazing prize pool, and मतलब what I want to tell you is not just for the pro people. इसमें फन गेम्स भी होंगे, फन राउंड्स भी होंगे जो हमने डिस्कस किया था, जैसे सबके लिए कुछ ना कुछ हो कि जैसे फन गेम्स में यूं है कि कौन सबसे कम डेथ्स होती है, कौन सबसे ज्यादा नीड्स किधर फेंक सकता है, ताकि everyone can win something and enjoy their passion. तो सर what we are working on, what you are working on is amazing. नहीं, what you are working on यार, मैं तो उतना नहीं. You are the person with जितनी knowledge and stuff you have, किसी को नहीं इतनी. अच्छा ठीक है, थर्ड वेंचर में मैं जाना चाहता हूँ. ठीक है, हाँ जी. What is बनारस एनीमे क्लब? Okay, so सर जैसे it's सर जैसे मिस्टीरिया जब हम लोग स्टार्ट करते हैं सर, तो हमने गेमिंग एक एक्टिविटी लाई थी, हमने पेंटिंग एक एक्टिविटी लाई थी. तो उन्हीं सब एक्टिविटीज में ना सर
there's a very good friend of mine, Ansh. तो we just having a call. हम लोग ऐसे ही बैठे थे, बात कर रहे थे, and he was a member of Delhi Anime Club, and वो Delhi Anime Club की बात बता रहा था कि यहाँ पे ये इवेंट्स हुए, इतना मजा आया, ये हुआ, ये सारी चीजें हुई. तो मैं बोला कि why he was one कि भाई can we do that something in Varanasi? मैं बोला यार it will be an amazing activity because सर अब Netflix, Crunchyroll, मतलब people are actually buying Netflix subscription जो पहले हमेशा torrent पर होता था या वेबसाइट्स पर होता था, फ्री वेबसाइट्स पर, पायरेट बेस पर, वो अब पीपल आर एक्चुअली बाइंग द सब्सक्रिप्शन. एंड सर अब इंटरनेट इतना सस्ता हो गया ना कि एवरीवन नोज अबाउट एनिमे. जैसे एनिमे में सर पोकेमोन एक एनिमे था, डोरेमोन एक एनिमे था. अच्छा, रामायण की भी एनिमे, एग्जैक्टली, रामायण की भी एनिमे मूवी थी जो इंडियन और जापानीज गवर्नमेंट ने साथ में थी. तो सर जब हमें पता है कि पीपल लव एनिमेज, वी लव एनिमेज, व्हाई नॉट बिल्ड अ कम्युनिटी ताकि एक साथ सारे लोग आए and they enjoy their love for animes together, and that is why Banaras Anime Club came into picture. It's a club where people come together who love animes to do some activities, to have fun, to organize events, and basically enjoy. And sir, what's the best thing with us is कि because Banaras को हमेशा Indo-Japanese culture और heritage का अमेलगमेशन माना जाता है. एग्जैक्टली सर, जैसे सर हमेशा क्योटो से भी लोग हमें सिंग करते थे बिकॉज इट्स वाज आल्सो रिलीजियस सिटी, दिस इज आल्सो रिलीजियस सिटी. तो देयर आर ऑलरेडी मेनी जापानीज इन्फ्लुएंसेस इन द सिटी. जैसे जापानीज टेंपल है सर वाराणसी में, सारनाथ के साइड में. तो दिस सिटी वाज ऑलरेडी ब्रिमिंग विद दैट कल्चर, और यहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं. तो दैट्स व्हाई वी आल्सो स्टार्टेड दिस. दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स, और हमारे लिए बहुत इजी हो गया. दैट इज स्टोरी बिहाइंड बनारस एनिमे क्लब. अच्छा, अभी तक कौन-कौन सी एक्टिविटीज की हैं बनारस एनिमे क्लब ने? सर जस्ट बिन 5 months. सर 5 months में we have over 2,400 followers, more than 700 active community WhatsApp members, and we have been cited as the fastest anime club of India, fastest growing anime club of India. And sir, ये सब इसी वजह से होता है कि they have organized lots of activities. They have organized meetups. सर मीटअप हुआ था, मिस्टीरिया में हुआ था. And सर हमने सोचा भी नहीं था, मुझे लगा था 15-20 लोग हैं. सर बस 65 पीपल, जबकि हमने कुछ भी नहीं किया था. उसके बाद सर वी वेंट टू IIT BHU, वहाँ पे हमने स्टॉल लगाया. People loved us like crazy for posters, for keychains. Yeah, I've seen the pictures. Exactly. And उसके बाद सर we even went to IIT Patna. IIT Patna called us कि मतलब you guys are doing so good, please come with your anime culture in ourselves as well. फिर उसके बाद सर वी गॉट एनिमे मूवी स्क्रीन्ड इन वाराणसी. जैसे क्या होता है कि सर यहाँ पे PVR नहीं है, तो एनिमे मूवी की राइट्स अभी तक कोई लोकल थिएटर लेके नहीं आया था. एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर मनीष तलवार जी फॉर सपोर्टिंग अस दिस वेंचर. We got an anime movie screened in Varanasi, sir. So you won't believe 5 days shows houseful. उस समय बॉलीवुड मूवीज हाउसफुल नहीं हो पाई थी, and anime movies हाउसफुल थी. And sir, अभी next big thing which is coming is Natsumi. It's sir, it's the first summer anime fest of not only Uttar Pradesh, also Bihar, but also Madhya Pradesh, but also Jharkhand mein they did a very good anime fest. And it's the first anime fest of Uttar Pradesh. It's like a mini Comic Con, sir. ऐसे इसमें properly tell us about Natsumi. Okay sir. So sir, Natsumi is a combination of meetup. लोग आके एक दूसरे से मिलेंगे. They'll meet very key players in India, जो मतलब जैसे very famous cosplayers and very famous anime voice artists. They'll come and meet them. And उसके बाद sir, there will be musical performances, there will be cosplay contests. अच्छा, people who don't know what cosplay is, sir, cosplay is like जैसे सर कॉमिक कॉन में क्या होता है ना कि लोग अपने फैंसी ड्रेस होता है सर, जैसे लोग बैटमैन बन के जाते हैं, सुपरमैन बन के जाते हैं. cosplay is like anime cosplays, जापानीज अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम पहन के आ रहे हो, उनकी तरह ड्रेसअप करके आ रहे हो. उसमें सर फोटो बूथ्स रहेंगे कि people can get click pictures with this, and we have got some amazing sponsors, sir, and that people will see on the हमारे रील्स पर. And we're glad to have you on board with us, sir, for supporting us with such novel ideas. Yeah, I love the idea. पहली बार सुनते हैं. Thank you, sir. Thank you. And sir, वहाँ पे ना जैसे food stalls होंगे, merchandise stalls होंगे. We are having holy chopsticks on board, sir, with amazing Asian food. Sir, we'll have gaming as well. So वहाँ पे लोग games खेल पाएंगे, एक दूसरे के साथ 1v1 कर
Tekken, Mortal Kombat, Valorant. मतलब it's basically a sir one day fest जिसमें सबको एक टिकट खरीद के आके enjoy कर सकता है. And tickets start at just rupees 149, and the highest ticket, which is the VIP ticket, it's just at rupees 350. So, and sir, 300 tickets are already sold, and we are yet to do marketing. So that just shows कि 302 tickets, मैं और हर्षल हम दोनों. okay, 302 tickets are already sold, and we are yet to do marketing, sir. अभी marketing रह रही है. I know. अभी Exactly. next 1-2 days Exactly. that's going to start. It's going to be huge. It's going to be huge, and मतलब thanks to the people of RNC, thanks to our community, and thanks to you, sir, and thanks to everyone who supported us, and we'll do it good and we'll give back to the community. अच्छा ठीक है, one last question. हाँ जी sir. For example, अगर मुझे पार्ट बनना है बनारस एनिमे क्लब का, हाँ जी. then how does one become a member of बनारस एनिमे क्लब? So you just have to simply follow us on Instagram. That's it. कोई membership fees नहीं है sir. कोई कुछ नहीं है. यार मैं अपनी कमीशन लेने वाला था अभी लोगों से कह के कि मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू लोग साइन अप करें. नहीं sir, we want to give back to the community, no? तो इसके लिए we believe in keeping things, you know, as much accessible to people. That is what we believe in, sir. And अभी आप भले कमीशन की बात कर लो, बट मुझे भी पता है आपका भी मॉडल ये है कि लोगों तक चीजें पता चलनी चाहिए. In the end, Yash, हाँ जी. what are your future plans? So sir, Because you are very promising. देखो, मतलब at your age you've done so much. ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलके, and you know, whenever we talk, it's amazing. thank you sir, thank ठीक है, you. and I love listening to your plans. तो सबके लिए एक बार बताना, what are your future plans? So the plan is to, you know, keep hustling as much as I can. I really want to, you know, build something promising sir, कि जैसे जो मैं बोलता हूँ ना सर वो मुझे करना है. Because क्या होता है ना सर कि चीजें इतनी टफ हो जाती हैं कि लोग बीच में छोड़ देते हैं चीजें. And I will try as much as I can. And sir, I just need the support of people, support and love of people, which I already get from you. And I also need the support of every gamer in Varanasi, every person who loves anime in Varanasi. In and around Varanasi. In and around बस Varanasi. मिर्जापुर भदोही में बहुत लोग हैं सर, आ रहे हैं लोग एनिमे फेस्ट के लिए. सो एनिमे कम्युनिटी, गेमिंग कम्युनिटी, आई रियली वांट टू गिव बैक. Even in fact, everyone in this room wants to give back to you. Just please help us, guys. Please spread the word about this because we can't do it without you. बनारस वाले भाइयों और बहनों, हम आपके बिना ये नहीं कर सकते. We just want you to do it. Please support us. Please shower us with love. And if you have anything to say to us, please feel free to reach out to us. We will hear and we'll, you know, work upon your suggestions and we'll give you the best possible thing there is. That's it, sir. Thank you, Yash. Thank you so much for Thank you, doing sir. this. It was so Thank nice. you. It was